आई बॉर्न एंड बॉट अप इन बैंगलोर। और जैसे मेरी फैमिली बहुत रॉयल थी। डांस, पहले डांस कहलाता था कि डांस क्या करना है। तभी डांस का इतना मायना नहीं रखते थे कि डांस कोई चीज़ नहीं है कि हमें इसको कैरियर की तरह ले। लेकिन एक बहुत अच्छी बात थी कि हमारा गुजराती में गरबा होता है। सो दैट वाज द प्लस पॉइंट इन आर थिंग एंड हम गरबा स्टार्ट किया एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज वाज व्हेन आई वाज समथिंग अराउंड 5 years old। आई गॉट, तभी मुझे वहाँ फर्स्ट प्राइज मिला गरबा में। तो आई वॉज फीलिंग वेरी नाइस कि मैं इतना अच्छा गरबा करती हूँ, बट व्हेन आई स्मॉल आई डिडंट गॉट इट। तो धीरे धीरे हमारा गुजराती में यू द गरबा स्टार्टेड एंड आई यूज टू प्ले एंड दैट पैशन केम टू मी फ्रॉम द गरबा as a Gujarati. Okay, and then I started learning dance. Okay, tabhi then my mom has taken me to some Bharatnatyam, do a classical dance, and learned classical little, and started my journey. And of course, when I got the first prize in Garba, I got the scooty. They called me as a queen of Garba. And I've got so many prizes, and I've done so many choreography for the Garba also. So and won first prizes for that. Garba choreography is a very much different. There are so many different Garba, like Apna Prachin Garba, Avrachin Garba. Now it has come up to so different kinds of Garba. So that is all very much important when you do the choreography. So Dakla Ras, and I've started doing the choreography for Garba, and the journey started like that. I have choreographed for my Samaj, that was I'm Lohana Samaj, and from there I found that yes, I can teach. I was doing nice, that too I know, but I can teach also. So I started. I've won so many prizes. Then I started teaching, and the teaching was also, and they were also getting all the prizes. It was getting known that this choreography is something very different. So that matters me a lot. And from that I was getting this girl has got something, and something has, like, every time they used to tell me, and I used to choreograph for so many things. देखो, कभी कभी क्या होता है कि जब भी मुझे सेलेक्ट नहीं किया था एक गरबा कंपटीशन में, क्योंकि आई वॉज अ फैट, मैंने जब बोला तभी मेरे माइंड में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चीज़ मेरे को बहुत ही वो करती थी, एंड आई स्टार्टेड कि नहीं, आई विल शो इट कि ऐसा नहीं हो सकता। एंड दैट मेक्स मी टू मेक इट दिस वन। एज वेल एज रॉयल फैमिली, तो हमारे को डांस के बहुत मायने नहीं रखते थे, लेकिन माई मॉम ऑलवेज सपोर्ट मी कि तारे करવું છે तो तू डू इट, इट्स ओके, यू वॉन्ट टू डू द डांस, बट यू जस्ट थिंक इट शुड बी, बिकॉज तभी जमाने में दैट मीडिया एंड दैट थिंग वो बोलते थे कि बच्चे लोग, मतलब लड़कियां लोग फॉरवर्ड होके फिर शादी नहीं होगी, अगर कोई होगा तो इसको कैसे अपनाएंगे, दैट वाज आल्सो मैटर्स लॉट। सो दिस थिंग वाज हैपनिंग, लेकिन माई मदर सपोर्टेड के नो, यू वांट टू डू इट, जस्ट डू इट, इट्स ओके। देखो, जब भी मैरिड हुए थे तो सेम थिंग यहाँ भी था कि डांस तो नहीं होना चाहिए, सेम थिंग, बिकॉज दैट मेंटालिटी दैट टाइम इट वाज देयर, सेम थिंग इट वाज हैपनिंग हियर ऑल्सो, ससुराल में भी ऐसा ही था। Then also, the Garba was there. The Garba we play, and the people used to see me. I make some different styles when I do the Garba. And वो देख के, I got the prizes from here. So my husband saw कि yes, she's doing very nice, and people used to compliment कि बहुत अच्छा कर रही है. And then started. Then I got a girl baby. तब तक तो I was nothing doing, and she came to 4 years, and she in her school, children's academy school, it was a talent competition. I got one paper that there is a talent competition for the parents. I said, wow, this is the nice thing which I got, and of course I have to show something here. Of course that was there कि मैंने यहाँ नहीं कर रही हूँ, तो it was feeling so bad कि नहीं, कुछ करना चाहिए और यही चीज यहाँ मैं प्रूव कर सकती हूँ। So I thought, yes, I will prove it here कि what is the talent. तो मैंने वो कंपटीशन में पार्ट लिया एंड आई परफॉर्म। बहुत ही डिफरेंट सॉन्ग किया था जो राज कपूर जी का था। इट वाज अ बहुत ही फेमस सॉन्ग है, जीना यहाँ मरना यहाँ, एंड आई बिकम अ जोकर। तो वो एक चैलेंजिंग था कुछ अलग करने का, एंड दैट आई कैन शो माई टैलेंट।
तो डांस बहुत ही वहाँ फेमस हुआ, सब लोगों ने बहुत ही तारीफ की। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी उसने देखा कि वाह तुम बहुत ही अच्छा डांस करती हो। तो आई सेड यस मैम, आई वाज अ कोरियोग्राफर इन बैंगलोर बट आई मुंबई, मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है। और उसकी तुरंत ही 1 महीने के बाद मेरी डॉटर का भी डांस कॉम्पिटिशन था स्कूल में। तो आई न्यू हुला हुप, हुला हुप के जरिए मैंने उसको वो प्रॉप लेके मैंने उसको डांस करवाया। तभी भी प्रिंसिपल ने देखो, ओ माय गॉड शी इज आल्सो डूइंग सो नाइस, तो उसने मुझे कॉल बताया कि व्हाई डोंट यू कोरियोग्राफ फॉर आवर स्कूल्स। सो दैट वाज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो आई स्टार्टेड कोरियोग्राफिंग फॉर स्कूल। वहां से धीरे धीरे मैंने यहाँ क्लासेस स्टार्ट किए मेरे घर से। तो जैसे ही बच्चे लोग आने, जब भी घर पे एक साथ 100 बच्चे, 100 बच्चे के बैचेस होने लगे, तो फिर नहीं सोचा कि कहीं अभी बाहर करना चाहिए। एंड देन माय डांस क्लासेस स्टार्टेड इन द मुंबई एंड स्टिल गोइंग ऑन, दैट्स शिल्पा गनात्रा यूथ जोन डांस एकेडमी। अभी तक मैंने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। देखो 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड करना कोई इजी बात नहीं है, तो बहुत ही चैलेंजेस आते थे कि क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड में, सेकंड वर्ल्ड, बिकॉज तभी मुझे कोई जानता नहीं था, सब ट्रस्ट कर रहे थे कि कैसे हो रहा है, बट आई स्टार्टेड, एवरी वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज गॉट समथिंग वेरी डिफरेंट। तो पहला मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था कंट्री क्लब में 3 मिनट्स का हुला हुप किया था। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था, मैंने हुला हुप के साथ वेराइटी ऑफ डांसेस, दैट आई डिड हुला हुप फेस्टिवल फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो मैंने किया था। वो चीज, वो आइडिया मुझे कहाँ से आया कि मैंने गॉन टू मलेशिया, वहाँ मैंने ए ग्राउंड में एक फेस्टिवल होते हुए देखा। तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ था ये फेस्टिवल हो रहा है तो हम क्यों हुला हुप फेस्टिवल ना करें। तो हुला हुप की सभी चीजें जो क्या हो सकता है, आई डिड इट दैट, एंड दैट वाज द सेकेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड। थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड था जब लॉकडाउन था और कुछ करना चाहिए और बच्चे लोग वैसे ही बैठे हैं, तो आई हैव डन द लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन ऑनलाइन। उसमें भी बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया 3 मिनट तक हुला हुप करना, एंड वी गॉट द लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड। चौथा और पांचवा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था, जैसे मैंने हुला हुप के साथ गरबा किया, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, कभी किसी ने किया नहीं था, गरबा विथ हुला हुप। सो दैट वाज आल्सो ग्रेट, वो भी बहुत ही हिट गया। फिर मैंने किया अभी क्या हो सकता है हुला हुप में, तभी हुला हुप के साथ न्यूरो चैंपियनशिप, बॉडी और माइंड दोनों काम करना चाहिए जब हुला हुप करे। तो हुला हुप के साथ मैंने न्यूरो चैंपियनशिप किया। जैसे न्यूरो चैंपियनशिप क्या होता है कि माइंड, अभी देखो हम हुला हुप करते तो उसके साथ हम क्यूब कर सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं, सेव पूरी बना सकते हैं, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी व्हाट वी कैन डू विद द हुला हुप। दैट वाज द अदर वर्ल्ड रिकॉर्ड। और अभी मैंने लास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड किया और उसके ऊपर मैंने फिल्म भी बनाई, बम्बैया। जो मैंने शो किया है यहाँ का बॉम्बे का ग्लैमर, क्योंकि मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुंबई ने मुझे ऐसे, मैंने ऐसे देखा है, वो मैंने वहाँ बताया है। तो हिस्ट्री, ग्लैमर, बॉलीवुड जैसे बोलते हैं, और हसल जैसे हमारी भाग दौड़ यहाँ की कैसी है, तो आई शोड इन दैट फिल्म दैट इज रिलीजिंग ऑन 28 जून। ये एक बहुत ही यूनिक फिल्म है। यहाँ बहुत सारे बच्चे लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया है, लेकिन हुला हुप के साथ ये भी फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड द वर्ल्ड हो रहा है, एंड दैट इज माय 7th वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमने किया है। बहुत सारा चैलेंजिंग तो होता है, एवरी डे आई शेड्यूल माई डे, एवरीथिंग लाइक दैट, कि फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डांस फील्ड एक ऐसी चीज़ है, करियर बनाना है तो कोई इजी बात नहीं है। बहुत सारे डांसर्स है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमें क्या कर सकते हैं बहुत डिपेंड रहता है, फोकस रखना पड़ता है। जब भी सोचते हैं ना कुछ करना है तो बस फोकस रखो और करो, एंड गिव योर बेस्ट, एंड वॉट एवर यू डू गिव योर 100%। और नहीं हो रहा है तो 100% करने की ट्राई करो, जो मैं अभी भी करती रहती हूँ, देन ओनली वो जर्नी यहाँ तक पहुंची है, एंड आई एम फेमस नाउ। डांस इज माई लाइफ, डांस इज माई पैशन। डांस एक चीज है कभी भी दिल से आनी चाहिए, सो दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कोई बोलता है ना मैं तो कई रुच न थे लाइफ में, आई सेड कम टू मी,
आप कर सकते हो, सिर्फ हमारा काम है निकालना, बिकॉज एवरीबडी नोज डांस, कभी किया नहीं इसीलिए दे माइंड सेट आर कि वी कैन नॉट डू, बट मैंने बहुत सारे नॉन डांसर्स को भी डांसर्स बनाया है। आई टीच टू द सीनियर सिटीजन पीपल ऑल्सो, बहुत सारे सीनियर सिटीजन लोगों को भी सिखा चुकी हूँ। थिंक कि आफ्टर 60 वी कैन नॉट डांस, उनको लगता है कुछ भी नहीं है, तो प्लीज अटेंड दैट वर्कशॉप। जब भी मैं सीनियर सिटीजन का वर्कशॉप रखती हूँ, आई एम डैम श्योर मेरे पास आओगे आप डांस करना सीख जाओगे। पता है कभी आपने किया नहीं, बहुत पाँव दुख रहे, बहुत नीज पेन है, बहुत पेन है, डोंट थिंक लाइक दैट, जस्ट कम attend my workshop and just see the magic, because I can say everybody can dance. एक तो पहले मैं रॉयल फैमिली में जब बॉर्न हुआ था, तो तभी जब कहा गया था कि डांस शू करो चे नाचो शू चे, नाचने का क्या है, दैट नाचवानो वर्ड वाज वेरी फीलिंग बैड के दिस इज वाई दे से यूज दिस वर्ड नाचवानो, बट तभी वो कैरियर नहीं था तो मैं चुप थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा हमें ये वर्ड को चेंज करना है, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। तो वो वहाँ से डिफिकल्टी होके बहुत सारा डांस करने के बाद कभी कभी हम बैठ जाते, तो आई बिकेम फैट। बहुत सोसाइटी ने मुझे रिजेक्ट किया कि कैसे डांस कर सकती है, अगर फैट है तो हाउ कैन शी डांस। सो वो चीज भी मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन आई शोड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन यू वांट टू डू इट। सक्सेस का मायना क्या रहता है, तो आई कैन से जब भी कोई हमारे बारे में बोलता है, हमारे बारे में लिखता है, ऑफ द बेस्ट आई कैन से दिस बुक वॉज 13, जिस करण जी ने लिखा है, और उसने 13 वुमेन ऑफ मुंबई उसके बारे में स्टोरी लिखी है, उसकी जर्नी लिखी है। व्हाट सी एवरीबडी हैज गॉन अप एंड डाउन इन द लाइफ, ही हैज सेलेक्टेड 13 वुमेन एंड रिटन दिस बुक 13, एंड वन ऑफ द बेस्ट जर्नी है 13 वुमेन लोगों की। प्लीज अगर आपको कहीं लगता है ना कि वी आर वेरी सैड, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, प्लीज रीड दिस बुक। आई एम डैम श्योर आपको भी लाइफ में कुछ करने का मन हो जाएगा। मैं यही कहती हूँ कि अगर इंस्पायर कर सकते तो करो, और सब लोगों को मेक देम एक्टिव, तो बहुत मजा आएगा। जो डांस अकेडमी में मेरी डॉटर 2 ईयर से है, ये उसका 3rd ईयर है, एंड उसको बहुत खुश है इससे। ही इज़ अ वन ऑफ अ काइंड टीचर हु हैज़ सो मच डेडिकेशन, एंड शी विल गिव हर स्वेट एंड ब्लड इन द वेरी लास्ट मिनट, be it any event, be it any world records. Ma'am is always there for our children.